A very good morning, everybody. Welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and I welcome you to your own channel. Today, we have a very special guest amongst us who very kindly has agreed to share his, I would say, not just expertise, but also all the experience that he has gained over the years. So, without further ado, I welcome IR 15 this year, Mr. Kunal Rastogi. He is an amazing, amazing person. Thank you, sir. You're most welcome, bhai. You're most welcome here. And I'm so, like, it feels so happy to see somebody achieve so much and still be so humble. And, like, this is something that has been consistent about you. Even when I met you during the draft session or during the interview session, the mock interview session, this has been really consistent about you. And it is still date. लोग बोलते हैं यार कि मतलब ऐसे रैंक आने के बाद लोग बदल जाते होंगे बट यू आर टोटली एन एक्सेप्शन टू दैट सो it is not just about Thank you you, being sir. here but you being the person that you are. So to other people, Thank yeah, you, sir. most welcome, bhai. To other people, I would just like to tell that Kunal has cleared with such an amazing rank in his third attempt, and even before this, he gave the interview in his very first attempt. His prelims score has always been like one of the best, and even like he has got cleared the forest cutoff. That is another thing. But this year specifically, even when the like prelims got so tough and everything, and the cutoffs like dropped like anything, Kunal, as per coaching keys, has managed to score somewhere between 115 to 125. So we are guessing that he would be in the range of 120. So this is like nearly 40, 50 marks above the cutoff, which is like exceptionally exceptional. So he has very kindly, like with a great heart, agreed to share not just his strategy, but also a lot of his experience that he has gained over a lot of PYQ analysis over the years. So like by doing a lot of in-depth PYQ analysis, he has gained a lot of patterns, a lot of trends, and a lot of observations from those PYQs, which he will be also sharing along with this session. So before that, we'll have some communication and some discussion regarding his film strategy and everything, and then he'll take over the lecture with all the examples and everything. So I would request you to take as many notes as possible from this particular lecture, and if you have any doubts, you can drop them in the comments. We will maybe have our next lecture whereby Kunal can address some doubts as well, and share some few other tips as well if that would be required at all. Once again, welcome Kunal. Welcome to the channel. Uh, Thank you, sir. okay, so let's begin with the fact that we all know that prelims is getting like vague and tough and everything. It has like this particular prelims was the toughest prelims if we go just by mathematical numbers. Still, you are outshining and clearing it. So, what is that X factor? What is that strategy that you can share with us? Uh, so prelims, with each passing year, has tried to outdo the various uh, established knowledge regarding the examination pattern. And so I now feel that this examination, particularly the prelims, is not only about knowledge, but the necessary exam intuition as well. So जो हम लोग सब जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन सबको आते हैं या मैक्सिमम लोग को आते हैं, उसके बाद आप सब लोग एडुकेटेड गेसिंग करते हैं. अब उस एडुकेटेड गेसिंग में कौन कितना ज्यादा एक्यूरेसी अपना बढ़ाता है, वो मैटर करता है कौन प्रीलिम्स एक्चुअली में क्लियर कर रहा है. तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी में ये दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कि क्या कहाँ से नॉलेज गेन करें हम इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, प्लस उस नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करें वो नेसेसरी एग्जाम इंट्यूशन के साथ, ताकि हम लोग कंफर्टेबली प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर कर पाए. Right. The name that I generally give it is exam aptitude because I राइट believe, सर. so that is the name that I came up with because I believe that, you know, there is this aptitude for every exam that you have to develop when you're solving that particular paper, that particular exam. So, yeah, so we can call it intuition as well. That is a very right word because when you're sitting in the examination hall, it is all about your intuitions and your aptitude beyond a राइट certain सर. limit, as you were talking about. So, we'll discuss the knowledge part first. राइट सर. Okay, great. तो सर, I think perhaps one of the most important topics of prelims is polity. So सर, Right. पॉलिटी में मैंने भी करीब वही सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज यूज किए जो सब टॉपर यूज करते हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई. लेकिन मैंने उस बुक में थोड़े बहुत चेंजेस किए. मैंने क्या किया कि मैंने उसका बाइंडर तोड़ दिया एंड Okay. आई डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक इनटू वेरियस सेक्शंस एज इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
जैसे कि पार्लियामेंट Okay. का मैंने अलग कर लिया पार्ट, एग्जीक्यूटिव का पार्ट अलग कर लिया, रेगुलेटरी बॉडीज का पार्ट अलग कर लिया, और सेपरेट सेपरेट तीन चार उस बुक के तोड़ दिए। तो उससे सर दो Okay. फायदे हुए मेरे को। सबसे पहले तो एम लक्ष्मीकांत इज वेरी बल्की, तो इफ यू स्टार्ट ट्राइंग टू रीड इट ऑल एट वंस, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड देन Definitely. आप शायद उस बुक को छोड़ ही दो। तो एक तो वो सबसे पहले छोटा दिखने लगा, तो मुझे मन में लगा कि चलो ठीक है, इतने छोटी छोटी पार्ट्स तो मैं कर सकता हूँ। Right. सेकंड पार्ट सर ये होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट होता है, उसके पॉलिटी में ये नहीं होता कि उसके सारे पार्ट्स इक्वली स्ट्रांग है या इक्वली वीक है। Mm-hmm. मैक्सिमम टाइम्स में ये होता है कि कुछ पार्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स आपके वीक होते हैं, तो हमें प्रायोरिटी अपने वीक पार्ट्स को देनी चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। तो जब मैंने उसको एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो फिर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठा डायरेक्टली पाऊंगा जिसमें मेरे को थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। तो इससे Right. मेरा रिविजन का टाइम बहुत ही शॉर्ट पड़ गया। Right. सेकंड सर मैं क्या करता था कि आफ्टर ईच चैप्टर मैं दो तीन ए फोर साइज शीट पेपर लेता था, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं चैप्टर में, मैं उस चैप्टर के उस ए फोर साइज शीट पेपर में लिख देता था अलॉन्ग विद द पेज नंबर। तो उससे मेरे को पता होता था कि ये कीवर्ड है, और मैं जो एग्जाम में मेंशन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, और वो लक्ष्मीकांत के एग्जैक्टली कौन सी जगह पे मिलेगा। तो इससे सब दो तीन फायदे होते हैं। एक तो टाइम बचता है, नहीं तो आप क्या करोगे कि आप वो डायरेक्टली कीवर्ड उठाओगे और फिर आप उसको लिखोगे तो उसको बहुत टाइम जाता है। सेकंड ये है सर कि जैसे ही आपने पीवाईक्यू से मैच करना शुरू कर दिया अपने सिलेबस के पैटर्न को, तो आपका रिवीजन भी इक्वली फास्ट होने लगता है। सेकंड, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर लीव नहीं करते हैं। तो ये दो Right. मेरे मेजर इंटेंशंस थे, तो मैंने इस तरह लक्ष्मीकांत के बुक को तोड़ दिया था। सेकंड सर मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज की, जो मुझे लगता है मेरे लिए वर्क की, वो था बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। आई फील Okay. अगर आप बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार पढ़ते हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। Please. 2020 में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू, वेदर इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड और इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। Mm-hmm. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, तो फिर ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है जो बेयर एक्ट है, तो आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्या सही में मेंशन है कि नहीं। तो बेसिकली Right. मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से वो कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाता था। और Right. वो मेरे Right. सर मेंस में भी काम आता था, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। या एक्चुअली इस वाली चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इन दिस सर। स्पेसिफिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ यू लाइक टर्न द पेज ऑफ लक्ष्मीकांत बाकी लोग कर भी सकते हैं अभी we'll see that there is a specific line given on the second page of the fundamental rights chapter that because of this particular article expressively judicial review is given in the constitution. सर। But when in the examination this particular statement came, the expressively word was not given, but still students got confused because obviously we, do not think of doubting what we have read in the book. But if राइट you go सर। to the Bare Act, as you were saying, the Bare Constitution, as you were saying, we will never be missing on to such questions. So that is right. The राइट सर। important Bare Acts always is important and it holds right. सर थर्ड सोर्स मेरा जो था, दैट वाज द एनसीईआरटी। सो द 11th क्लास एनसीईआरटी सर इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन। उसमें वो सारी फंडामेंटल फीचर्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है, जैसे लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, सोवरेनिटी, ये सारे कीवर्ड उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर यूपीएससी थोड़ा और डेप्थ में जाता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे तो Hmm. लगता है कि बिफोर रीडिंग लक्ष्मीकांत एंड द बेयर कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनसीईआरटी क्लास 11 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती Right. 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 There are a lot of subjective questions coming these days. What is the meaning of liberty? What is the है। linkage between law and liberty? What is the meaning of social capital? So these kind of questions, a lot can be done from understanding the political theory part of the NCRT. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Right. एक और सोर्स सर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो था पीटी 365। आई थिंक पीटी 365 इज ब्यूटीफुली कवर्ड बिकॉज इट Right. कनेक्ट्स द स्टैटिक विद द करंट अफेयर्स, जो मुझे नहीं लगता किसी और करंट अफेयर मैगजीन में इतने अच्छे से रिटर्न है। तो मैंने तो पीटी 365 बहुत अच्छे से फॉलो किया था। Right, right, right. I've already like made people do that, and it is really सर। like really a good magazine. That is true. That is true. राइट सर। Okay. नेक्स्ट सर जो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ज्योग्राफी। Okay. तो सर ज्योग्राफी बेसिकली दो पार्ट्स में बटा है। एक तो आपका मैपिंग का पार्ट है, एंड अनदर पार्ट इज योर थ्योरेटिकल पार्ट। Yeah. तो सर थ्योरेटिकल पार्ट के लिए तो आई रेफर टू टू बुक्स वेरी रिलीजियसली। एक तो सर एनसीईआरटी,
दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। और उसमें भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर, जो राइट राइट क्लास राइट। 11 में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर मैंने जीसी लियोंग को भी रेफर किया था, और मुझे लगता है हम्म। कि जीसी लियोंग का इंपॉर्टेंस काफी अंडरस्टेटेड है। लेकिन उसका क्योंकि लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वहां से। फॉर एग्जाम्पल 2023 में फ्योर्ड्स आया था एक क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ। नाउ इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द एनसीईआरटी, बट इफ यू गो टू जीसी लियोंग लैंडफॉर्म वाला चैप्टर, वहां पे ये फ्योर्ड्स डायरेक्टली मेंशन है। तो राइट। वहां से आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स वगैरह में कैसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं ज्योग्राफी का। राइट। इसके And अलावा like, सर, is हाँ सर, Kunal, is GC Leong important for prelims as well? सर आई फील इट इज बिकॉज यू नेवर नो व्हाट फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। Right, तो right. जैसे बहुत सालों से लैंड फॉर्म्स के ऊपर इतने एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं आए थे, तो लोगों ने मेंस Hmm. के लिए पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन सिंस Right. नाउ इट हैज बीन आस्क्ड इन मेंस, तो बहुत चांसेस है कि इस बार Chance. प्रीलिम्स में भी कोई लैंड फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। There is always a hint kind of a thing कि यूपीएससी देख किस तरफ रहा है. There can हाँ हाँ always सर। be driven. Yeah, right. सेकंड सर जो मुझे लगता है पार्ट मैपिंग का है। तो हाँ. मैपिंग में सर मैंने दो तीन चीजें बड़े उससे किया था। सबसे पहले तो सर मैं काफी ज्यादा गेम्स खेलता हूँ अपने मोबाइल फोन पे। तो Okay. उसमें एक बड़ा अच्छा गेम है, एक बड़ा अच्छा ऐप है सेटेरा ऐप। तो सर सेटेरा ऐप बेसिकली क्विज फॉर्म का ऐप है, जिसमें Okay. बेसिकली पूरा कॉन्टिनेंट दिखा देता है, और उसमें बोलता है कि ये कंट्री आइडेंटिफाई करके दिखाओ। Okay. Nice. तो मैं सर जैसे अगर मिडिल ईस्ट का मुझे रिवीजन करना है, तो मैं मिडिल ईस्ट का मैप खोलता था, उसमें वो कंट्रीज बताता था, और मैं उस कंट्री को ट्राई करता था लोकेट करने पे उस मैप के ऊपर। Okay. सिमिलरली आप, Have I read the like have I spelled it correctly or आई थिंक सर इट इज डबल आर। okay 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 cool. Yeah, that was just sort of confirming. Okay, cool. राइट सर। तो एक तो मैं ये देखता था। सेकंड चीज सर, जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने भी किया था, अपने कमरे में वर्ल्ड मैप टांग दिया था। तो वो वर्ल्ड Classic. मैप सर, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप लगते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, और फील सेकंड, आती है। बार बार आप उसको अगर देखेंगे तो जनरली चीजें याद हो जाती हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली चोक पॉइंट्स एंड ऑल। बिल्कुल। राइट। तो ये सर मेरे दो बेसिक चीजें थी जिसको मैंने ज्योग्राफी में तोड़ के रखा था। प्लस सर मेरे ख्याल से जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर हम्म। ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए भी। बिकॉज वो आपका जो कितना एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना है वो ये पीवाईक्यूज आपका दिखा देता है। राइट राइट राइट। थर्ड इज सर जो, देयर नंबर ऑफ सर, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज, कुछ मतलब ऐसे पर्टिकुलर नंबर है क्या? सर मैं तो लास्ट 15 ईयर्स का मंत्रा रखा था कि राइट। लास्ट 15 ईयर्स में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए, आई ओके। ट्राई एंड एटलीस्ट कवर देम। कूल कूल कूल, ठीक है, ओके। ओके सर, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो हाँ। सर हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैंने तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही जो सब पढ़ते हैं वो है स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। राइट। और सर अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, और क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया भी पढ़ी थी, जो एनसीईआरटी में पढ़ी थी, ओल्ड एनसीईआरटी। हम्म। लेकिन सर ये करेक्ट। बहुत सिलेक्टिव है, ये अगर आप करना चाहें तो ही करिएगा, बिकॉज इट इज क्वाइट एक्सटेंसिव एंड टाइम टेकिंग थिंग। या वेरी स्पेशली सिलेक्टिव। व्हेन यू आर सो क्लोज टू प्रीलिम्स, तब तो मतलब तब तो people of काम ही 10 to आएगा। 5 can think about it. राइट सर, बट नॉट नाउ। और सर हाँ। स्पेक्ट्रम में भी मैंने वही सेम टेक्निक अपनाई थी जो मैंने अपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के लिए ओके अपनाई ओके ओके। थी। दैट आई ब्रोक द बुक इनटू सेक्शंस, कि बिफोर हम्म। 1757 का मैंने सारे चैप्टर्स एक साथ कर लिए, 1757 से 1857 तक सारे चैप्टर्स एक साथ कर लिए, राइट 1857 से नेशनलिज्म मूवमेंट का शुरू होने के पहले वाले एक पार्ट कर लिया, एंड देन फॉर मॉडर्न इंडिया। तो इससे आपका रिवीजन भी आसान हो जाता है और बुक भी थोड़ी पतली हो जाती है, क्योंकि 600 पन्ने की बुक है करीब करीब सही बात है यार, स्पेक्ट्रम। एंड इट गोज ऑन ग्रोइंग एवरी ईयर। राइट सर, एवरी ईयर। इससे भी सर मैंने फिर वही A4 साइज शीट पेपर लगा दिया था हर सेक्शन के बाद, और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो पीवाईक्यू में रखे गए थे उसको मैं उनमें लिख लेता था, एंड देन आई वुड ट्राई टू कनेक्ट इट विद द बैड टेक्स्ट ऑफ द Got स्पेक्ट्रम। it, got it, got it, got it, got it. So that's it for modern. दैट्स इट फॉर सर, दीज टू बुक्स वर Great, इट फॉर मॉडर्न। great, great, great. Then like नेक्स्ट ancient थिंग, revival is always an issue. राइट सर,
So if you can tell something about what did you do for ancient, because यार मेरे को तो मतलब बहुत इशू आता है in in recalling things, in keeping them in the memory. So what was your बिल्कुल सर। approach for ancient and medieval? तो सर एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने तो दो सोर्सेज जनरली लोग कहते हैं, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी हो गया और एक हाँ, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक हो गई। या ओल्ड तो एनसीईआरटी मतलब फर्स्ट, हाँ सर, आर्य शर्मा। राइट और सर तमिलनाडु की भी जो हिस्ट्री बुक है वो आप नई वाली लीजिएगा, पुरानी वाली नहीं। एक पुरानी वाली भी है, बट आई हाँ, थिंक द न्यूअर वन इज बेटर। राइट 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 तो व्हाट आई फाइंड सर इज बोथ द सोर्सेज आर वेरी एग्जॉस्टिव एंड वेरी हम्म, एक्सटेंसिव। कोई करेक्ट। भी दोनों में से आप एक यूज कर सकते हैं एंड इट इज इक्वली गुड। प्लस आप एक चीज ये कर सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पढ़ लें। क्लास 6 से बल्कि क्लास 12 तक नए वाले। तो अगर हाँ, आप ओल्ड एनसीईआरटी राइट पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 6 से 9 तक के पढ़ सकते हैं। राइट राइट, दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू ऐड एज वेल। क्योंकि राइट अभी क्या सर। है कि मतलब ठीक है, हमें तो मतलब प्रिपरेशन में कुछ टाइम हो गया, बट लाइक रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड स्टडिंग द एनसीईआरटीज, द न्यू एनसीईआरटीज. So, like, if सर। somebody has been doing that, for example, the themes NCERT is like really good to cover a lot of things, है ना, काफी concepts बनाती भी है वो. I have like gone through it personally. So, like, I was always a fan of R.S. Sharma book, but राइट सर। these days, like, even the themes NCERT is doing that job. So, अगर इस particular point of time पे, if you have read a particular source, you don't need to switch it. But that is why, like Kunal has already said, you have to read just like one of the sources, and you can बिल्कुल सर। substantiate or supplement it with some other basic test series or basic PYQ research. राइट सर। सर मिडिवल पे आते हैं सर। तो हाँ, मिडिवल प्लीज. पे मैंने पहले तो सोचा था सतीश चंद्र पढ़ूंगा, लेकिन इट इज अगेन वेरी बल्कि। राइट. एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई, इसका बहुत कम है। तो करेक्ट. देन सर व्हाट आई डिड वाज मैंने कोई कोचिंग का बुक उठा लिया था एंड मैंने हाँ उस हाँ. कोचिंग के बस रिसोर्सेज जो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था, समरी, दैट ओनली आई रेड। राइट बिकॉज राइट. इतनी हिम्मत नहीं हुई मेरी पूरी बुक नहीं यार, पढ़ने की। सही भी है यार. इट्स ऑलवेज अबाउट द ROI. सी, दैट इज व्हाट एग्जाम स्मार्टनेस इज अबाउट ना. अभी जैसे पीपल कीप रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, दे कीप रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, दे कीप वाचिंग लेक्चर्स फॉर 70-80 आवर्स. बट पिछले 3-4 साल से कोई क्वेश्चन ही नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का, प्रीलिम्स में, मेंस में. सो ROI गोज सो डाउन. मतलब आपके पास टाइम है तो देन दैट्स अनदर थिंग, अनदर हाँ बॉल सर। गेम टुगेदर. बट एल्स यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट रिलेटेड टू द एग्जाम. सर इसके अलावा एक हिस्ट्री का मुझे जो सोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड दैट इज द ल्यूसेंट बुक। ओके. तो ल्यूसेंट इज अ जनरल नॉलेज बुक सर। उसमें वो सारे जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैपिंग, इन्वायरमेंट के जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड है एक एक जगह पे। एंड राइट. दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है। जैसे कि सर ओके. एग्जाम्पल से फनम का आप देखेंगे, पीवाईक्यू जो आया था 2021 हाँ. 22 में, राइट. दैट वाज डायरेक्टली हाँ. आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। ओके 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 फिर सर ओके. मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, सरकार, सूबा और ये सारी जो चीजें आई थी, हाँ, I ये भी probably marked them as well. I can 2021 में। display the questions also. राइट Uh, सर। I guess that's the question, right? राइट सर, फनम। Right. So that's from इसके Lucent, नीचे right? वाला, राइट सर, मतलब ल्यूसेंट में भी ये प्रेजेंट है एग्जैक्टली हाँ. शॉर्ट फॉर्म में। वैसे ही सर क्वेश्चन नंबर 5 में भी सूबा, सरकार, ये सारा ऑर्डर ल्यूसेंट में अच्छे से मेंशन्ड है एक ऑर्डर में। Right, 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 तो right, आप इसको अगर पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन का विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल सी दैट स्ट्राइक रेट ऑफ ल्यूसेंट फॉर हिस्ट्री इज वेरी हाई। तो right. आप उसको बार बार रेफर करिए। मैंने तो किया था, तो मुझे हिस्ट्री में बहुत फायदा मिला। सिमिलरली हाँ. सर स्पेक्ट्रम का भी अगर आप देखेंगे उसी पीडीएफ में बहादुर शाह वाला क्वेश्चन एक था। Right. That's the question. सो दिस वाज आल्सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, डायरेक्टली मेंशन्ड। हाँ. Also, this also तो becomes important here to mention that people have over time, reduced the importance of the initial part of spectrum, and राइट they've सर। started reading spectrum from 1857. But now UPSC is turning back towards those particular years, द प्री बिल्कुल सर। 1857 एरा. तो हर साल उससे एक दो क्वेश्चंस दिखते ही हैं. कभी दिख जाएगा कि फैक्ट्रीज कहाँ पे लगी थी इनिशियली, ब्रिटिश फैक्ट्रीज कहाँ पे, ये वाली फैक्ट्रीज कहाँ पे, और टाउन्स हाँ और सर। सिटीज दिख जाएगा वहां से. या फिर सम सॉर्ट ऑफ द रूलर्स दैट वर प्रेजेंट देयर, द लेटर मुगल्स एक्सेट्रा. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट. द प्री 1857 वाला सेक्शन इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट एंड इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. बिल्कुल सर। मतलब मेरे ख्याल से अब यूपीएससी का साइकिल में होता है कि कुछ साइकिल्स में मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन अगर उसने शुरू किए तो 3-4 साल मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ही वो करता रहेगा। फिर उसके बाद राइट. उसने अपना साइकिल चेंज किया, तो अब प्री 1857 के जो भी हैं, अब इस वजह से सर जो बॉडीज हैं
जो कांग्रेस के प्रिकर्सर्स है, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके right, अब पूछने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, और जो आपके एशियाटिक सोसाइटी वगैरह हो गए जो पहले बने थे, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अब उसमें भी correct, हमें इक्वल वेटेज देना चाहिए। right, absolutely right, absolutely right. सर नेक्स्ट आते हैं हम अपने इन्वायरमेंट पे। Okay, हाँ, environment. तो सर इन्वायरमेंट पे आई फील दैट एक तो PMFIS का जो बुक है सर, दैट इज वेरी एग्जॉस्टिव एंड Hmm. वेरी वेल रिटन। तो मैंने Right. तो सिर्फ अपना जो एक ही रिसोर्स रखा था, दैट वाज PMFIS फॉर कवरिंग द स्टैटिक सिलेबस ऑफ द इन्वायरमेंट का जो भी Okay, सीरीज है। great. Hmm. देन सर अगेन PT 365 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज PT 365 की वजह से ही मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपको जो फैक्ट्स हैं वो पता, जैसे क्लाइमेट ट्रैकर का जो ऑर्गेनाइजेशन था 2022 में जो पूछा गया था, हाँ, उसके आपको जो अगर आप वापस मैप करेंगे तो PT 365 में भी वो दिया हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल देयर बिल्कुल. देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे सर ग्रीन वॉशिंग चैप्टर, ग्रीन वॉशिंग पूछा गया था लास्ट टाइम, वो भी इससे ही लिंक था PT 365 में। करेक्ट तो करेक्ट पिछले साल का नहीं, लेकिन उससे पिछले साल का। तो मतलब ईयर बाय ईयर वो चेंज होता रहता है। करेक्ट. एंड सर वन मोर सोर्स आई रेफर्ड वाज डाउन टू अर्थ। ओके. सो डाउन टू अर्थ की सर मैंने देखा है कि कुछ 8-9 मिनट की वीडियोस यूट्यूब पे प्रेजेंट है। तो अगर ओके. आपको जो एक्चुअल टेक्स्ट नहीं पढ़ना तो आप उसका यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, एंड इट इज इक्वली गुड। तो वो जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, उन सब चीजों को डिस्कस हम्म. करता है। एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ यूपीएससी टू आस्क दीस थिंग्स बिकॉज दे आर आल्सो इन करंट अफेयर्स। तो मैं डाउन टू अर्थ को ओके तो बहुत रिलीजियसली फॉलो करता था। ओके ओके. तो वो मतलब अभी यूट्यूब वीडियोस देख के इंसान थोड़ा थोड़ा मतलब वो फ्री टाइम में वो समरी टाइप ले सकता है. हाँ सर। ओके तो जैसे ओके सर ओके. खाना खाता था मैं कभी, और मेरे को या किसी दिन पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैं अपना ये डाउन टू अर्थ चला लेता था और उसको देखता था, स्पेसिफिकली जब मैं खाना खा रहा होता था। तो वो बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, डाउन टू गॉट अर्थ। क्योंकि गॉट सर ये इट. वीडियोस इंगेजिंग भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने कोई फैक्ट्स वगैरह प्रेजेंट किया, उन्होंने उसको एक अच्छी स्टोरी की तरह वीव किया है। तो आपका हाँ उनको. एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और आप राइट. वीडियो भी देख पढ़ भी लेंगे कुछ। करेक्ट. उनको थोड़ी यूपीएससी के लिए बनानी है, सो या दे आर रियली. हाँ सर। और है मतलब it's good, even the down to earth magazine is good, but the point is that it is really bulky and we still do राइट not सर। have any source that can summarize it into a good format. So this YouTube राइट video सर। wala thing I think is like really appropriate. बिल्कुल सर। सर इसके अलावा हाँ. No. No. uh, Kunal, you're not audible. सर एम आई ऑडिबल नाउ? Yeah. ओके सर। तो सर इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं हम लोग या सेक्शन में, दैट इज इकोनॉमी। Yeah, correct. तो सर इकोनॉमी पे मेरा सबसे बेसिक और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो एनसीईआरटी है, क्लास True, 11 का मैक्रो इकोनॉमी का चैप्टर। true. तो सर मुझे लगता है अब जो इकोनॉमी की क्वेश्चंस हैं, दैट इज नॉट ओनली नॉलेज बेस्ड, बट अब वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। Exactly. चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आए और उसका रिलेशन इन्फ्लेशन से क्या है, या बिल फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एक्सपोर्ट्स के बीच का रिलेशन हो जाए, तो ये सारी चीजें वो जनरली अब पूछने लगे हैं। तो आई फील करेक्ट कि ये जो एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट है वो आपको पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए कम से कम। करेक्ट. सेकंड सर मैंने काफी रेफर किया था, वो था फिर से PT 365 फॉर माय ग्रेटर राइट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि इकोनॉमी पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं न्यूज़पेपर्स पे काफी फोकस करता था। हम्म. जैसे मेरे को पता है बॉन्ड यील्ड का रिलेशन या इन सब चीजों का रिलेशन, या आप सिर्फ ऐसे अगर किसी बुक में पढ़ लेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, और अगर हाँ. पता भी चल गया तो आप शायद उसको अप्लाई ना कर पाए। ओके. तो राइट. उसमें कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर रीडिंग काफी काम आती है। लेकिन क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास में है, तो आप कुछ ये कर सकते हैं कि कोई कोचिंग की समरी वमरी जिसमें ये सब दी हुई है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी हाँ. इक्वली। राइट. सो लाइक इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ मेंशनिंग समथिंग हियर. सो अगर मतलब ऐसे किसी को क्लास 11th एनसीईआरटी से इनफ ये वाला सब इम्पोर्ट मतलब नहीं मिल रहा है, सो देयर इज दिस एमसीक्यू बुकलेट बाय विवेक सिंह सर, जो मतलब ये सब चीजें कवर करती है. इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस, 450 क्वेश्चंस. तो उसमें क्या है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, बट ऑल्सो इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ करंट अपडेट्स. तो
मैंने ये चीज करी थी, और मतलब कराई भी है। ऑन द चैनल आई हैव लाइक मेड दिस वीडियोस वगैरह, तो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर किसी को अभी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, तो दे कैन सी दीज एमसीक्यूज एंड ऑल। सर इसमें एक और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो की थी, वो था आरबीआई के पेज में एफएक्यूज है एक सेक्शन। ओके, नाइस 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 नाइस। तो सर उसमें बेसिकली आरबीआई ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे रखा है इकोनॉमी के हाँ सारे, हाँ। चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या कोई भी और सेक्शन हो। तो आप उन एफएक्यूज को डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। एंड एक्चुअली इट इज इन वेरी सिंपल वर्ड्स। यस। बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है वो, मतलब एकदम एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। देयर इज नथिंग टेक्निकल टेक्निकल अबाउट इट। एंड सर इट्स वेरी क्रिस्प एज वेल। करेक्ट 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 बहुत करेक्ट ही कंडेंस फॉर्म में है पूरा जो मटेरियल है। करेक्ट। इन सब चीजों के अलावा सर अब एक और पार्ट आ जाता है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट। आई हाँ डोंट थिंक देयर इज एनी डिफाइंड सिलेबस फॉर इट, बट आई डू फील दैट देयर आर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इट। तो हाँ। आईआर में सर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल एक सर इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। बिल्कुल। एक सर इंडिया का ट्रेड रिलेशन या इंडिया का रिलेशन विद मेजर पावर्स आता है। राइट। तो ये सर आप सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस को इन किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो करेक्ट मेरे ख्याल करेक्ट। से आपको इन्हीं चीजों को बस एक्सपैंड करना है और पीवाईक्यूज के बेसिस पे अपना सिलेबस को इसमें डिफाइन करना है। जैसे बॉडीज की बात करते हैं हम लोग, तो एससीओ हो गया। जैसे पिछले साल एससीओ और ब्रिक्स दोनों का समिट इंडिया ने होस्ट किया था। जी राइट ट्वेंटी इंडिया ने समिट किया, G20 हमने होस्ट किया था लास्ट ईयर। नो मनी राइट। फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो था वो इंडिया ने होस्ट किया था, जो मेंस में आ भी चुका है इस बार। यस यस यस। तो ऐसे यूएन के ऊपर बॉडीज आ गई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बॉडीज हैं। जैसे एक बार यूएन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में पूछा गया 2020 बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं एंड यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट। राइट कॉन्फ्लिक्ट जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इस साल आपका इजराइल ईरान गाजा पैलेस्टीन, फिर आपका राइट नागोर्नो काराबाख का रीजन हो गया, या फिर आपका राइट। साउथ अमेरिका का रीजन हो गया वेनेजुएला गायना का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर सारे आपके चोक पॉइंट्स हो गए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किधर है, रेड सी किधर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, बाबल मंडेब स्ट्रेट क्या है, करेक्ट पनामा कनाल सुएज कनाल किसको कनेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें करेक्ट सर मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। करेक्ट तीसरा करेक्ट। सर है इंडिया का रिलेशंस विद मेजर पावर्स। हाँ। तो सर इसमें जैसे इंडिया यूएस हो गया, इंडिया यूके हो गया। जैसे अभी यूएस के साथ लास्ट ईयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, तो उन विजिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स निकल के आए। जैसे जनरल हम्म। इलेक्ट्रिक का जेट इंजन आया, तो हो सकता है कि जेट इंजन का आप आईआर में ना क्वेश्चन पूछे बल्कि साइंस एंड टेक में पूछ साइंस एंड टेक में पूछ रहे लें हैं कि जेट इंजन कितने तरह के होते हैं, स्क्रैम जेट क्या होता है, रैम जेट इंजन क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे। राइट ऐसे इंटरलिंकेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट। फिर सर आपका मेरे ख्याल से यही तीनों चीजें आईआर पे हैं। अगर आपने इन सेक्टर्स में इसको बांट लिया तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसके रिसोर्सेज क्या क्या है, एक तो सर आपका फिर से PT 365 हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक सर मैंने इसमें क्या किया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR है तो मेरे को थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज मिल गया था इसमें। लेकिन मैं सर ORF की जो वेबसाइट है वो काफी फॉलो करता था, तो उसमें भी ओके। उन्होंने ये सब करके रखा हुआ है। और सर एक बहुत ही एक्सलेंट चीज है एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट। राइट उसमें वो हर हफ्ते या हर महीने पब्लिकेशन रिलीज करते हैं इंडिया के रिलेशंस के ऊपर। तो आप उनमें ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं वो वहां पे भी मेंशन्ड है, उसके बेसिस पे आप अपना क्यूरेट कर सकते हैं डाटा। राइट राइट। For people like who are giving prelims this year, you can visit and see a bit of publications if you have time. But if you do not have time, what you can do is you can like read this particular thing exhaustively and have the background linkages of the PT 365. Then it might sort a lot of things for you. And when you are like Bhagwan kare aap sab mains de, when you are giving mains, then you can refer to these things for a lot of value addition. बिल्कुल सर बिल्कुल। Okay, great. We are done with IR as well. एंड सर वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाँ मेंशन प्लीज हियर, प्लीज। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक और चीज को सिलेक्टिवली यूज किया। मुझे पता चला कि हर साल सोशल सेक्टर स्कीम्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओके
अब सोशल सेक्टर स्कीम्स में बेसिकली तीन मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत एग्जॉस्टिवली वर्क करती हैं। Okay. एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक हो गई, Right. एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमन हो गई, वुमन एम्पावरमेंट, Right. एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, Right. और एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। Okay. अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे गया, इन हाँ. चारों मिनिस्ट्री के जो भी पब्लिकेशंस है उनको टिक ऑन किया कि इनके मेरे को अलर्ट मिलते रहे, और मैंने Okay. Okay. उसको Okay. फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब सर मैं आपको उसका फायदा दिखाता हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट में जाए। हाँ 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 हाँ. Yes. 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 Here. तो सर अगर थोड़ा जूम इन कर ले सर, तो आप देखेंगे कि वर्बैटिम ये दोनों चीजें रिपीटेड है। Right. So this is the question that Kunal is talking about. This was a question in the year 2023, and this is a snapshot that we have taken from the PIB website. And if you will see, then these things are like verbatim repeated. For example, regarding the prophylactic calcium supplementation, and here it is directly given that it was the iron and folic acid supplementation. So this is what सर Kunal is talking about. That एक all और these चीज things. रिपीटेड है, हाँ, please. सेकंड पॉइंट सर, Yeah. ऊपर क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट सर। हाँ, please. सो इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। Right. आप पीआईबी का डी वाला पार्ट पढ़े सेकंड का, कौन से वाला इंश्योरिंग पार्ट? डी, टू का डी, इंश्योरिंग डिलेड कॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट. So डिलेड as it कॉर्ड। is repeated, correct, 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 correct. It is as it is repeated from the PIB, right? तो सर मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए पीआईबी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता Got it. Understood, understood. This is really innovative and like काफी research के बाद ही समझ में आता है ये. So this is all the मेहरबानी of doing PYQs extensively, right? है। राइट सर। Great, great stuff. तो सर ये मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली नॉलेज का पार्ट था, हमने करीब करीब सब कुछ ही, सारे डोमेन्स हमने चेक कर लिए जो इस एग्जाम Yes, में आते हैं। अब yes, we नेक्स्ट have done बात है। polity, geography, history, environment, economy, IR, and social sector schemes. Also, what about science and tech? Did you like do anything other than the 365? सर साइंस एंड टेक के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीजें तो की थी। एक तो मैंने, जैसे आपने बोला, पीडी 365 हो गया। हाँ. सेकंड सर मैंने बायोलॉजी की क्लास 12 या शायद 11 की एनसीईआरटी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर, शायद 12th की है सर। 12th की लास्ट है के पांच। probably. लास्ट के 4-5 चैप्टर्स वो एनवायरनमेंट के लिए भी करते हैं ना हम. हाँ सर। राइट राइट राइट. इसके बाद सर मैंने एक चीज देखी है यूपीएससी का, कि वो कुछ कुछ चीजें उठाते हैं और उसको डीप में हर साल लेते चले जाते हैं। जैसे ओके. कि सर थ्री पेरेंट चाइल्ड था क्वेश्चन, हाँ. तो आप देखेंगे इसको 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी है यूपीएससी, और हर करेक्ट बार करेक्ट हर इटरेशन में वो एक नए लेवल पे ले जाती है। करेक्ट. द तो मेरे सेम ख्याल इज से विद रिगार्ड टू क्रिस्पर Cas9 also ना. राइट सर। हाँ, प्लीज यू आर सेइंग समथिंग. तो अब अगर कोई यूपीएससी ने नया कॉन्सेप्ट पूछा है, तो और वो पीवाईक्यू में मेंशन्ड है, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसको गूगल कर लूँ आगे जाके। करेक्ट 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 करेक्ट. सर कमिंग ईयर्स में एक जैसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, दैट इज आपका क्यूबिट्स, क्योंकि क्यूबिट्स एक बार वो पूछ चुके हैं, हम्म. वेब 3.0 का बेसिक चीज वो पूछ चुके हैं, राइट. ब्लॉकचेन की बेसिक चीज वो पूछ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो इससे एक लेवल आगे चले जाएंगे, एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। राइट. This year there can be a question maybe around language modeling, राइट LLM, सर। and this AI chat GPT वगैरह thing. So there can be a question around neural networks for that matter. So ऐसा हो सकता है कि इस साल आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले. So what क्योंकि सर, like. हाँ, प्लीज प्लीज. सर इस बार मेंस में उन्होंने एआई का क्वेश्चन पूछा था जीएस 3 में। करेक्ट 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 जैसे करेक्ट. आपने कहा एलएलएम पूछने के काफी चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्युटली. राइट. अब So we तो are ये done सब। with the. हाँ, we are done with the knowledge वाला part, I guess. राइट सर। Right. So now comes a very important thing, which is intuition and aptitude for the examination. सर This becomes important because, as Kunal said, that
भाई कितना भी पढ़ लो, देयर इज ओनली अ लिमिट टू व्हाट यू कैन अचीव बाय योर नॉलेज, और इसमें ना कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, because you have a limited time, you have a limited memory, you have a limited brain, you have a limited recall capacity. So there is only a limit to what you can achieve by your knowledge. But that does not at all mean कि आपकी गाड़ी वहीं पे आके रुक जानी चाहिए. You cannot go and type 30 questions कि मैं यही करूंगा and come back. You have to take it. You know what was your attempt this year, Kunal, for example, in the 2023 paper? तो सर मैं हमेशा ये सोच के गया हूँ कि अगर आप प्री कंसीव नोशन लेके जाते हैं कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आप बेसिकली वहां पे फ्लाउंडर कर सकते हैं। सही तो बात है. व्हाट आई मेड आउट कि मैंने सोचा कि जब मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए तो मुझे लगा कि 83 क्वेश्चंस इज माय एंकर पॉइंट, कि Okay, इससे ये मेरा एंकर है, इतने तो करना ही करना है। अब इसमें +5 या -5 मैं डिसाइड करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। correct. सो सर 2021 में आई अटेम्प्टेड 89 क्वेश्चंस। Okay. 2022 में सर आई अटेम्प्टेड 92 क्वेश्चंस। हाँ. एंड इन 2023 since the difficulty was very high, I only attempted 84 questions। Correct, 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 correct. लेकिन Absolutely मुझे right. पता था कि 83 से तो ऊपर करना ही करना है। Right, 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 right. So, like, मेरे को भी ये लगता है कि there has to be a flexibility to what you are doing in the examination, but you should not also be blinded by the toughness of the paper and not take a very wrong decision at that particular point of time कि यार बहुत टफ आ गया तो इसे 60 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं. It हाँ might work for like 1 in 1,000 or 1 in 10,000 person, but you should not fear the fact कि भाई पेपर बहुत टफ आ गया है. आप अपने इंट्यूशन, अपने एप्टीट्यूड, अपने नॉलेज पे विश्वास रखेंगे, you will go ahead with it. Now this also becomes important. जैसे Somen was here the other day, he attempted somewhere around 80-81 questions, and now he also scored 109. Now Kunal has like attempted 84 questions and he's scoring somewhere around 120. So like there is a common thing between both these things is that they're attempting 80 plus, and they're very very carefully leaving a certain kind of questions that the probability of getting wrong is very high. So that saves you from a lot of negative marking and helps you in like, getting an edge on the score. तो एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन अटेम्प्टिंग ओनली फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चंस वो ये है कि हर साल यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, हाँ. where nobody knows the answer, and if सही you are बात है. only 60 questions आप इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी निर्भर हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो आपका जो सर्टेनिटी ऑफ पासिंग द प्रीलिम्स बिकम्स वेरी प्रिकेरियस इन दैट सिचुएशन। राइट, 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 राइट. तो दैट्स व्हाई थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा करनी चाहिए ताकि इन सब्जेक्टिविटी की ओवरकम कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. ऑल राइट. ठीक है, तो वी आर सॉर्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ let us discuss what extensively over the years Kunal has developed the intuition and aptitude for solving the MCQs in the examination. And let's go one by one. Shall we begin, Kunal? राइट सर, लेट्स बिगिन। Okay, so yeah, over to you. I'll present the questions and you can tell the type of the question and what your observation is there. सो सर व्हाट आई फाउंड वाज कि हर साल आस्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेसिक इंटेंशन रहता है क्वेश्चन के पीछे इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर रिमेन्स द सेम। तो हम सर अगर 2021 का क्वेश्चन देखें, द क्वेश्चन वाज कि कोई एक एनिमल दिया गया है और उसका एक ट्रेट मेंशन है, और उसमें कितने एनिमल ये ट्रेट शेयर करते हैं। Hmm. तो इसमें जब मैंने आंसर देखा था तो आंसर 1 और 3 था, hedgehog एंड pangolin। सो 3 Right, क्वेश्चंस आर गिवन, 3 ऑप्शंस आर गिवन एंड 2 आर करेक्ट। right, इस साल का सर पेपर के हम क्वेश्चन में आते हैं जो 2023 में पूछा गया। अगेन a particular trait has been asked and 3 animals have been mentioned। right. सो देन आई फेल्ट सर कि मुझे एक आंसर से मुझे पता था कि जो मालाबार सिवेट है, जो लायन टेल मकाक है, दैट इज नॉक्टर्नल इन नेचर वहां Okay, पे। बट आई वाज नॉट श्योर इवन इन दिस एज वेल। तब फिर right. मैंने सोचा कि आई नीड टू अटेम्प्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज नहीं तो फिर मैं वो अपना 84 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। Correct, 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 देन correct. आई, अब मुझे गेस करना था। मुझे इतना पता था कि तीनों एनिमल तो नहीं करते और Right, एक एनिमल तो जरूर करेगा इसमें, क्योंकि right, यूपीएससी का ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अब मैं right. कंफ्यूज था 1 और 2 के बीच में। Hmm. मुझे पता था कि सर सांबर डियर नॉक्टर्नल है, Right. दैट आई वाज श्योर अबाउट।
तो अब मुझे ए और बी के बीच में एक गैस लगाना था। अब सर आप ब्लाइंडली गैस करेंगे तो आपका बहुत चांसेस है कि आप जनरली यूपीएससी से हार जाएंगे। राइट। तो इस गेसिंग के पीछे भी कोई एविडेंस होना चाहिए, एंड दैट एविडेंस वाज माय पीवाईक्यू ऑफ 2021। एब्सोल्युटली। तो इसमें दो क्वेश्चन सही थे, तो मैंने टू पर टिक मारा 50-50 के बाद। Right. So, like, this is a very beautiful thing that you have to understand for people, that we keep on speaking of the educated guesses, that your guesses should be educated. But there is also something कि आपका जो education है वो है किस basis पे. So from there we can derive a subcategory of educated guesses, which is evidence-based guessing. So in questions where you have some evidence कि UPSC इस pattern पे पूछता है, and if you have to attempt that question, then, and if you're reaching to a stage where Kunal was there, 50-50, तो अब the point is कि आप क्यों only one के साथ जाओगे? When you already have evidence that UPSC asks such questions and gives the answer as two of the options, तो आप जाओगे क्यों only one के साथ? That would be going against the trend, and I would say going against data. And data कभी गलत नहीं होता है. You should always go with the data, and that is what Kunal did and secured a score here. Great, understood, Kunal. Right, sir. So this was the first type of question, sir, that I found. Right. अब सर ये तीन अलग क्वेश्चंस लग सकते हैं, लेकिन इन सब में इन्वायरमेंट अगेन इज द सेम फैक्टर। Okay. तो सर मैंने इसमें क्या किया, मुझे 2021 से पता चल गया था कि अब यूपीएससी इज मूविंग फॉरवर्ड। अब वो Hmm. वाले दिन गए जहाँ पे वो सब नेशनल पार्क पूछ रहा है, और वो कौन से स्टेट में। Right. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स इन वेरी डिटेल। Hmm. तो सर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए मुझे लगता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्रीज है, स्पेसिफिकली जो नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, वो आप देखें। मुझे लगता है एग्जामिनर नेटफ्लिक्स काफी देखता है, और स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट्रीज। तो Okay. आप देखेंगे हर साल वो करीब करीब सेम चीज रिपीट करने लगा है। अब Okay. जैसे आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, हाँ. तो आप एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है फैंटास्टिक फंजाई करके, Okay. उसमें डायरेक्टली चीज दिखाई गई है कि एंड कैसे कल्टीवेट कर रहा है फंजाई को। बाकी दो क्वेश्चन सर आप आए। हाँ, प्लीज. ये दोनों क्वेश्चन सर और प्लैनेट से लिए गए हैं। अच्छा यार, वो तो है भी, मतलब दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री दैट आई हैव पर्सनली वॉच्ड. इट्स ब्यूटीफुल. राइट सर। तो ये मेरा इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस में था एक लर्निंग पीवाईक्यूज देख के, कि ये डॉक्यूमेंट्रीज के बेसिस पर है। तो आपको पता होना चाहिए वो एनिमल बिहेव कैसे करता है, ना सिर्फ करेक्ट. एनिमल के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज नाउ दे आर नॉट आस्किंग अबाउट फैक्ट्स कि ये इंडेंजर्ड है कि नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। बट वो एक्चुअली डीप में चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनिमल बिहेव कैसे करता है वाइल्ड में। तो राइट. दैट इज आई थिंक द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड आस्किंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट. 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 तो एग्जामिनेशन में आप रिकॉल कर पाए थे अपना ये आर प्लैनेट से चीजें? सर मैंने क्योंकि आर प्लैनेट को एज अ डॉक्यूमेंट्री नहीं बट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखा था, तो मुझे ये सब हाँ. चीजें वहां पे याद थी। तो आई करेक्ट. वाज क्विकली एबल टू, जैसे इसमें सर मैं दो तीन चीजें तो मैं इंस्टेंटली एलिमिनेट कर दिया था मैंने। जैसे बॉस, मुझे पता था कि वो कोई डांस ऐसा नहीं करते। ड्रैगन फ्लाइज भी सर मैंने ये कर दिया था, क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज आल्सो क्वाइट सॉलिटरी इन नेचर। ओके. मैं बटरफ्लाई और हनी बीज में बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि बटरफ्लाइज भी काफी माइग्रेशन वगैरह करती हैं, और हनी राइट. बीज एक वो है। लेकिन फिर सर मैंने हनी बीज में टिक मारा, क्योंकि मुझे और डायनेचर तब तक याद आ चुका था। करेक्ट. 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 अंडरस्टूड. सिमिलरली सर ओरैन गुटान वाला मेरे को जो एग्जांपल है, अब मुझे पता चला कि ट्री और लॉग ऑफ वुड। तो लॉग ऑफ वुड जनरली जो मंकी स्पेसीज के लोग हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वह थंब होता है, एंड थंब राइट. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पिकिंग अप अ लॉग ऑफ वुड। तो फिशिंग कैट तो कर नहीं सकता वो, क्योंकि कैट के पास पाँव होती है, थंब तो होता नहीं है। करेक्ट. ऑटर सर पानी में रहता है, राइट. उसका लॉग ऑफ वुड का क्या काम है। राइट. अब बच्चा स्लॉथ बेयर और ओरंगुटन। स्लॉथ हम्म. बेयर का भी सर मुझे पता है क्लॉज बहुत बड़े होते हैं, बिकॉज दे आर हंटर्स बेसिकली। तो हम्म. अगर इतने लंबे क्लॉज होंगे किसी पर्टिकुलर एनिमल की, तो वुड कैसे उठाएंगे, लॉग ऑफ वुड। और इस बेसिस पे सर मैं ओरंगुटन पे आंसर आया था। सही. नाउ दिस इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एजुकेटेड गेस, लाइक प्रॉपर प्रॉपर. तो हाँ, तो मतलब ऐसी चीजों में नॉलेज एंड योर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड फ्रॉम वेरियस थिंग्स वर्क. अब मैं लोगों को मतलब बोलना चाहता हूँ कि डोंट स्टार्ट, मतलब ऐसे
थिंकिंग की लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दिस हैज कम फ्रॉम अ रियलाइजेशन ऑफ पीवाईक्यूज कि भाई थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देख लेनी चाहिए. एंड दैट इज व्हाई कुणाल here was able to crack these questions. तो अगर कोई एक भी इंसान एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर पैटर्न की वजह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैटर्न इसका मतलब चल तो रहा है. नाउ इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू imbibe that or not, if you can learn from that or not, and take that edge in the prelims, or just else keep ranting. That becomes important. तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें से कुछ एनिमल्स हैं जो आपके पीटी 365 में मेंशन है, Okay. जैसे Okay. फिशिंग कैट है सर, हाँ दैट इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेंशन इन पीटी हाँ हाँ 365, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और उसका कैटेगरी क्या है, तो वहां से भी मेरे को कोई आइडिया लग गया था. वैसे पीटी से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सर, जैसे ब्लू मार्सीर आया था लास्ट टाइम हाँ 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 हाँ, 2022 पिंड में, महासीर, राइट. ये फिश है कि नहीं है. नाउ दैट वाज आल्सो बेस्ड अपॉन अ पीवाईक्यू, उसको पैसिव वो एक्चुअली पहले ही पूछ चुका है. राइट. तो हाँ इसलिए हाँ बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एनिमल आ जाता है, जैसे अभी 4 एनिमल आ गए आपके सामने, हाँ. अब आप इन चारों एनिमल्स की अच्छी गूगल पे बैठ के स्टडी कर लीजिए, या आठों एनिमल्स की. बिकॉज हम्म. बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इन्हीं किसी को एक एलिमिनेटेड ऑप्शन की तरह रख देगा. करेक्ट. Correct. All right. Great. Great learning. Let's move ahead to the next kind of question. सर अब मैं सर इनको एटिमोलॉजिकल क्वेश्चंस कहता हूँ, Okay. बिकॉज यहाँ पे सर ये कीवर्ड्स किसी को नहीं पता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता थे, हाँ. लेकिन मुझे ये पता था कि मैं इन कीवर्ड्स को तोड़ जरूर सकता हूँ. Okay. जैसे सर एरियल मेटाजिनोमिक्स है, हाँ. तो हम इस वर्ड को 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जो मैंने किया था एग्जामिनेशन हॉल में. एरियल एक वर्ड हो गया, Okay. मेटा एक वर्ड हो गया, Okay. जीनोमिक्स तीसरा वर्ड हो गया. Okay. तो जीनोमिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ डीएनए या जीन्स, राइट. ठीक है. मेटा हो गया सब ब्रॉड, ब्रॉडर Okay. थिंग, और एरियल हो गया हवा से. ठीक है. हाँ. तो अब सर हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं. जीनोमिक्स से मतलब हमें डीएनए या कुछ जीन से रिलेटेड होना चाहिए. सही है. तो हम लोग सर जैसे सी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, करेक्ट. ठीक है सर. हम डी भी इस हिसाब से फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज इट हैज नथिंग रिलेटेड टू जीनोमिक्स, इन दोनों में तो वो जीनोमिक्स नहीं. सर. अब बचा सर हमारे पास ए और बी, ठीक है करेक्ट. सर. अब यहाँ पर एरियल का मतलब जनरली होता है एयर से रिलेटेड, इट हैज नथिंग टू डू विथ एक स्पेसिफिक एवियन स्पेसीज का ऑफ अ हैबिटेट. राइट राइट और राइट राइट. मेटा मतलब ब्रॉड होता है. तो इन दोनों में जो ब्रॉडर चीज को इंकलकेट कर रहा है, हमें उस ऑप्शन को चुनना है. अब जब बी ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज, मतलब बहुत नैरो हो गया है. बिल्कुल 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 इसलिए बिल्कुल. आंसर इसका ए होगा, क्योंकि ब्रॉडर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरह राइट. से इस पे आंसर आया था एग्जामिनेशन राइट. हॉल. Let's give them another like एग्जाम्पल सो दैट और ज्यादा स्टैब्लिश हो जाए ये चीज. तो सर जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अगेन हाँ. इसको हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं. ओके. डीएनए तो मतलब कुछ एवोल्यूशन या इनहेरिटेंस, इन सब चीजों से बेस्ड है डीएनए का मतलब. तो हाँ. माइक्रो मतलब छोटा, और ठीक है. सैटेलाइट मतलब किसी बड़ी चीज के सराउंडिंग, कि कोई एक राइट. पैरेंट चीज है उससे कुछ इवॉल्व हो रहा है. जैसे मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मतलब मून किसी तरह अर्थ से इवॉल्व हुआ, मैंने वहां पे ऐसे सोचा था. अब हम सर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. तो हाँ प्लीज. प्रमोट assessing the efficacy of drugs in conducting series of drug trials in population, ये तो कहीं से मुझे सर नहीं लग रहा है इसका कि इन तीनों से कहीं से भी मेंशन्ड है. ठीक है. फिर प्रमोटिंग क्लोनल हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, तो ये भी सर बिल्कुल ही मतलब नॉन सेंसिकल टाइप का ऑप्शन लग रहा है. ठीक है. अब बचा सर ए और बी. अब हाँ. सर डीएनए जो है फिर से वही नैरो और ब्रॉड के बीच में आ गया. जैसे हमने इसको स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज बोल दिया, तो हाँ. समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही नैरो चीज के बारे में बात कर रहा है, विच मे और मे नॉट बी ट्रू. प्लस सर मेरे को ये पता था कि इस पर्टिकुलर चीज को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, या ओमनी करेक्ट. टोटिपोटेंट. करेक्ट. वहां से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया. अब ए आता है कि स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना. अब एवोल्यूशनरी डीएनए से मेंशन्ड है, और माइक्रो सैटेलाइट आपका वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, मतलब एक फौना है और उसके अंदर से वेरियस स्पीसीज निकल रही है.
करेक्ट तो वहां से करेक्ट। मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी। अमेजिंग। Got it. Understood. So there is this another question that we can see here, like greenwashing. तो हाँ कुणाल प्लीज। अब सर ग्रीन वॉशिंग, वॉशिंग मतलब धोना। हाँ। ग्रीन मतलब उसको मुझे ये वहां पे उस समय लगा था कि ग्रीन वॉशिंग मतलब कि किसी चीज को ग्रीन बता के बेचना या धोना का वो है। करेक्ट करेक्ट। अब सर जैसे इसमें हम लोग ने चार ऑप्शन पढ़े। डी वाला पढ़ते हैं, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, मतलब वॉशिंग का तो इसमें से कहीं से भी नहीं लग रहा है। सही बात है। और करेक्ट। सर मैंने इसको बेसिकली कनेक्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग से, क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं हाँ तभी हम क्या लॉन्ड्रिंग बोलते हैं राइट। कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह धो के दिखा देना, जो जीएसटी का हमारे सिक्योरिटी का पार्ट है, टेररिज्म का। मनी लॉन्ड्रिंग एक सेपरेट वही है। तो मैंने वहां से सोचा था सर कि जैसे हम मनी लॉन्डर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ब्लैक मनी को वॉश करके व्हाइट मनी की तरह दिखाते हैं। करेक्ट। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब भी कुछ ऐसे होगा कि कुछ ग्रीन नहीं है लेकिन उसको ग्रीन की तरह दिखा रहे हैं। राइट 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 तो राइट मैंने राइट। वहां से कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की थी इस पर्टिकुलर आंसर में। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन दिखता है मैं हमेशा सिलेबस को देखता हूँ बैठ के कि हम्म। सिलेबस में क्या मेंशन है, और उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और ट्राई करता हूँ रिलेट करूँ कि मैंने क्या अपने सिलेबस में चीज को पढ़ा है पहले। करेक्ट 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 करेक्ट। अंडरस्टूड। गॉट इट। तो ये सब कुछ मेरे तरीके। अब एज टू है सर। अब इसमें सर मैं ये क्या करता था कि अगर कोई चीज सिमिलर, अगर चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं और कोई ऐसा कीवर्ड दिया हुआ है तो जनरली यूपीएससी क्या करता है कि दो स्टेटमेंट्स को सेम कर देता है, हाँ। दो ऑप्शंस को, और जनरली उन्हीं ऑप्शंस में एक आंसर करेक्ट होता है। जैसे अगर आप इन ऑप्शन में देखेंगे तो ए और डी आर मच मोर सिमिलर देन बी एंड सी। ओके। तो मैंने राइट। बी और सी को फिर एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये ए और डी से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। और अगर एग्जामिनर आपको, अगर मैं एग्जामिनर की तरफ से सोचूं तो वो यही करेगा कि दो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट बना देगा और दो को काफी सिमिलर रख देगा, एक जिसमें सही होगा और उस सही को सोचते हुए उसने एक और कोई स्टेटमेंट बना दिया होगा। सही बात है। हम्म। तो इससे जो स्टूडेंट है वो और कंफ्यूज हो जाएगा करने के लिए। राइट राइट तो राइट हमने राइट। जब रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो हम फिर सोचेंगे कि नहीं, तो ये अगर उसने ऐसे सोचा है तो हम फिर उससे ज्यादा समझदार हो गए इसमें। तो फिर हमने पता चला कि बी और सी तो नहीं होना चाहिए, ग्रेट। हम्म। तब ए और डी में कोई होना चाहिए। अब जीन्स इंट्रोड्यूस राइट। इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। अब ये था 2021 का ईयर। द इसमें कोविड कोरोना राइट। का भर भर के चल रहा था न्यूज में। सही बात है। तो मैंने फिर सर जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर में उस समय चला था स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, वो टिक कर दिया था उस साल। ग्रेट क्योंकि मैं ग्रेट। इसमें फिर से कंफ्यूज था 50-50 में आके। हम्म। जब आप 50-50 में इसमें कंफ्यूज हो जाए तो फिर मैं ये सोचता था कि जो करंट अफेयर्स में हैपनिंग चल रहा है बहुत सही। ज्यादा, हम्म। जनरली वही आंसर सही होगा क्योंकि वही सोच के एग्जामिनर ने बनाया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट राइट राइट। ओके ग्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब सर जनरली जो मैपिंग का मैं आपको जैसे बता था कि एनिमल्स रिपीट होते हैं, वैसे जगह के नाम भी रिपीट होते हैं। अगर आपने हाँ। 2018 का पेपर देखा तो इसमें कैटालोनिया मेंशन है, राइट। और 2022 का आपने देखा अगर पेपर तो इसमें भी कैटालोनिया मेंशन है। करेक्ट। तो इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। या करेक्ट एंड इस सी। वजह से आप, हाँ हाँ सर, प्लीज प्लीज। नहीं सर आप बताइए। नहीं वो जस्ट सेइंग कि यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि भाई इसका आंसर ये सही है, दैट कैटलोनिया इज पार्ट ऑफ स्पेन, तो आपको यहाँ जाके सीधा सीधा दो चीजें दिख जाएंगी कि कैटलोनिया एक तो इटली में नहीं है, दैट इज रॉन्ग, एंड सेकेंडली अभी मतलब कुणाल आपको एक पैटर्न और समझाएंगे कि भाई स्विच कर दिया है तो वो ऊपर वाला नहीं होगा आंसर में। सो थर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट। राइट सो सर। देन इट एंड बिकम्स easier for you. ओनली टू विल बी करेक्ट देन सर। Only two pairs will be the answer then. Right. अब सर एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं सम वाले, जो पिछले साल काफी पूछे गए थे। हाँ ये दोनों इसी साल के हैं। अब सर अगर हम इसके पिछले वाले साल पे जाए जो हमने एक और निकाला था, राइट। ये वाला, तो 2019 में सर ये क्वेश्चन आया था जिसमें सम 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 चारों में लगाए हुए थे और आंसर 1 2 3 4 था। बिल्कुल 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 इससे मेरे को एक ही समझ में आ गया कि कभी भी अगर यूपीएससी सम लगाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आंसर सारे ही होंगे, बिल्कुल। क्योंकि मे इसमें सर मे आ जाता है। कोई ना कोई एक तो हर्बी टर्टल होगा जो हर्बीवोर होगा, वैसे कोई ना कोई कोई ना तो कोई होगा एक ही। फिश बिल्कुल। होगी दुनिया में जो शायद हमें ना पता हो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई वही ऑफन से सर। कि ऐसा हो सकता है ना भाई कि मतलब कहीं कोई एक अफ्रीका की जंगलों में छिपा हुआ बैठा हो कोई स्नेक जो विविपेरस हो, तो वो मतलब एग्जामिनर को कितना रिसर्च करना पड़ेगा टू बीट दिस थिंग, राइट सर। विच इज जनरली नॉट ट्रू। एंड उसी लाइन पे ये दोनों क्वेश्चंस भी हैं इस साल के। सर बल्कि ये जो सब मशरूम्स है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, ये तो मैंने मूवी से देखा था। अगर सर आपने एवेटार देखी होगी मूवी, हाँ 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 हाँ। तो उसमें कैसे मशरूम्स और सब रात में ग्लो कर रहे होते हैं। यस 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 यस। तो सर करेक्ट। मैंने वहां से इंस्पिरेशन लिया था इसका, कि शायद ये भी हो करेक्ट। सकता करेक्ट। एंड अगेन द सेम लॉजिक वर्क कि भाई कोई तो कहीं मशरूम रोशनी कर ही रहा होगा, सो दैट इज अ सिमिलर थिंग। है। बिल्कुल सर। And similarly, this is also here. It is just saying कि भाई some microorganisms can grow in various conditions. So again, the point is that microorganisms is like in itself such a big area of research. उसमें भी कोई specific condition, it will be so tough for the examiner to deny it. And that is why आपका मतलब जब तक ऐसे PhD ही ना हो किसी particular topic में, तब तक don't go against these things. You are बिल्कुल not सर। allowed to go against these things. You have to mark all of the above in these cases. राइट सर। Okay, great. Then we have this particular thing. सर अगेन स्विचिंग का, इसमें आप एक्सेलेंट एग्जांपल देख सकते हैं। हाँ। अब सर मुझे पता है कि टाइग्रे रीजन इथियोपिया में है, करेक्ट। तो मतलब इन्होंने इन दोनों को स्विच कर दिया, तो दोनों गलत हो गए। बिल्कुल क्योंकि एक जगह में दो दो आंसर तो दे नहीं सकते वो, कि इथियोपिया ऊपर बिल्कुल भी दे बिल्कुल देंगे, बिल्कुल तो ये दोनों गलत हो बिल्कुल गए। तो अब मुझे पता चल गया था कि आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। बिल्कुल ये आपका सर सेकंड ऑप्शन में भी आप देखेंगे सेम चीज उन्होंने पूछी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द लास्ट लेक्चर एज वेल कि जब भी ऐसे होगा कि अगर यहाँ यहाँ का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके बराबर वाला सही दिया हो। सो विच मीन्स ये भी गलत होना है और ये भी गलत होना है। सो इसके ऊपर या इसके नीचे जो है बस उस पर ध्यान दीजिए, ये तो दोनों गलत होने ही हैं। सो इस केस में ये दोनों गलत हैं और इस केस में ये दोनों आपके गलत हो गए। सो दैट मेक्स योर आंसर इजियर। बिल्कुल सर। ग्रेट। अब सर ये कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आ गए अब हाँ से। सर ये वाला जो इस साल काफी बार यूज किया गया, और मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आपने आइडेंटिफाई एक बार भी कर दिया कि इसमें कोई एक गलत है, आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। करेक्ट। अब जब पढ़ा था अपना ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट, तो हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड था एक। हाँ हाँ हाँ। और हमने ये पढ़ा था कि ब्राजील के जो आपके गोल्ड के खदान, जो द गोल्ड माइंस। गोल्ड माइन नहीं सर, वो जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं जो, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो अफ्रीका में मेजर प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, जबकि जो कॉन्डुइट्स हैं वो आपके साउथ अमेरिका में है। करेक्ट। उससे सर, और आप मूवीज वगैरह भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका में काफी गोल्ड है। हाँ 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 हाँ। तो मुझे इससे ये समझ में आ गया था कि स्विट्जरलैंड क्योंकि इतना छोटा कंट्री है, उसका साइज सर मेरे ख्याल से हरियाणा एनसीआर और थोड़ा बहुत और जगह आसपास में मिला लेंगे तो उतना ही बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि प्लेसर डिपॉजिट मैक्सिमम जो आपके हैं वो गोंडवाना लैंड में थे, और वो ब्राजील और साउथ अमेरिका के बीच में थे। राइट। उन दोनों पॉइंट से मैंने ये तो जरूर मान लिया था कि स्विट्जरलैंड के पास नहीं हो सकता सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट। बस एक्सपोर्टर जरूर हो सकता है वो, कि शायद वो गोल्ड इंपोर्ट कर ले और वहां से एक्सपोर्ट कर दे उसको रिफाइन करके। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बोल दिया कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, हाँ। तो आंसर डायरेक्टली सी आ जाता है फिर। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आपको बिल्कुल। इसमें सर थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज लगानी पड़ेगी। और वो मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपका जो भी क्वेश्चन आता है आप ट्राई करिए उसको लिंक करने का अपने सिलेबस से, जो आपने बेसिक में पढ़ा है। बिल्कुल। और आपने अगर लिंकेजेस क्रिएट कर लिए तो आप एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेसिंग कर पाएंगे। राइट। एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेसिंग, सही बात है। करेक्ट। ओके। अब एंड सर जैसे ये क्वेश्चन 3 बार देखिए आप रिपीट हुआ है। 2009 में पहली बार हुआ रिजर्व्स का, फिर हाँ। इस साल आया 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर। करेक्ट। लास्ट ईयर भी सर एक क्वेश्चन आया था मोनाजाइट के ऊपर और केरला का बिल्कुल रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए हाँ, उनकी ज्योग्राफी। लोकेशन पूछ लेगा वो। हाँ सर। राइट। अब जैसे इस बार इल्मेनाइट और रूटाइल आ गया, तो आप प्लीज इसका थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिए। हो सकता हम्म। है नेक्स्ट दोबारा इसको रिपीट करें। सेम जैसे यूरेनियम का इन्होंने 2009 में पूछा,
उसी का बिल्कुल डेरिवेटिव है, वो उन्होंने 2022 में पूछा। बिल्कुल कोबाल्ट इन्होंने इस साल पूछ लिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम, अब इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स भी एक इसमें कीवर्ड है, तो हो सकता है ये दोनों मिक्स करके बिल्कुल। इस साल कुछ क्वेश्चन पूछ लें वो लोग। लिथियम तो से आपको आ जाए, समथिंग लाइक रीडिंग दैट। बिटवीन द लाइंस करना चाहिए इसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रेट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमने बता ही दिया, दिस वाज फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड दीज वर फ्रॉम ल्यूसेंट, लूसेंट सर। राइट। नाउ दिस इज फ्रॉम साइंस एंड टेक, यू वांटेड टू टेल समथिंग अबाउट इट। राइट। तो सर साइंस एंड टेक बहुत ही एक डायनामिक फील्ड है, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम टाइप ऑफ न्यू रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो राइट। मैंने ये किया था कि साइंस एंड टेक में जनरली स्टेटमेंट करेक्ट होगा अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली रॉन्ग। हाँ 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 जैसे डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन व्हिच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ये तो सर एकदम मतलब हाँ सेंस वाली हाँ। बात है, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या बाद में डिप्लॉय करके। राइट। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, ऑब्वियसली इमीडिएट ही होना पड़ेगा। बिल्कुल डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट, ये भी इमीडिएट होना पड़ेगा। और यहाँ करेक्ट। पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जनरली इसमें आपके ऑल थ्री हो जाएंगे। राइट 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 राइट। वैसे ही सर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गया। अब इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल्स बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड बिल्कुल बिल्कुल। वेब एप्लीकेशंस। देयर कैन बी, अब सर जैसे यहाँ पे कंट्रोल देयर ओन डेटा लिखा है, तो मतलब ब्लॉकचेन से कुछ रिलेटेड होना चाहिए एप्लीकेशन, हम्म। विच इज एग्जैक्टली द सेकंड ऑप्शन। बस ब्लॉकचेन को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। राइट। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर, तो बेसिकली वेब 3.0 का क्वेश्चन ये ब्लॉकचेन का क्वेश्चन है जो पहले पूछ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको ब्लॉकचेन आपने जो 2020 में आया था, अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस किया है और आपने उसके वेरियस फैसेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, तो बेसिकली ये तो रिपीट ऑफ द क्वेश्चन हो गया पिछले साल का। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं वही क्वेश्चन बोल इज रहा हूँ। नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। राइट सर। तो मैं वही बोल रहा था कि आपको जो पिछले साल कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उसका एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे क्वांटम का उन्होंने काफी चीज पूछ लिया है, क्यूब बिट्स पिछले बार पूछा था। अब आप क्यूब हाँ। बिट्स का क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसका हमें पूछ लीजिए, तो शायद 2024 में रिपीट हो, क्योंकि 20 अब आप इसमें सब देखेंगे कि ये रिपीट का भी 2 साल का साइकिल है। ये हम्म। 2022 में पूछा गया, 21 में एक भी ब्लॉकचेन का क्वेश्चन नहीं था, 2020 में था। ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस। तो सर ऐसी चीज आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि कितने सालों बाद यूपीएससी उसी पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा एक्सप्लोर, राइट 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 राइट, वो भी आप राइटली सेड। पीआई के बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रेट। एंड देन ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर ही चुके थे रिगार्डिंग पीआईबी, एनीमिया। right, regarding the importance of PIB. Great then, such an enriching session, Kunal, and I hope to see you again and again here. बिल्कुल Whenever, सर। whatever you want to share. I know you've got amazing marks in mains and amazing marks in prelims. So, like, you are the power hub of things. So, I want to see you again and again here. Most welcome always. बिल्कुल सर। And, like, really, thank you so much for coming here and breaking these myths. I really want people to understand this particular fact that देयर इज नो डाउट कि आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा कि कुणाल के इवन एजुकेटेड गेसेस वर अ लॉट बैक बाय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बट देन अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड पीवाईक्यू ऑब्जर्वेशन, पीवाईक्यू ट्रेंड, पीवाईक्यू बेस्ड इंट्यूशन एंड एप्टीट्यूड that we have to develop over an year, like over years, and subsequently you have to apply them in the examination, practice them on PYQs, and you will have a good score in prelims. Any बिल्कुल सर। last parting words, Kunal, before we conclude the session? सर आई डू फील कि अब प्रीलिम्स काफी ज्यादा रैंडम हो चुका है, लेकिन उस रैंडमनेस का भी एक तरीका है। तो वो कहते हैं ना बिल्कुल कि देयर इज सम ऑर्डर इन chaos एज वेल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी एक्चुअली समराइजेस। तो हमें उस ऑर्डर को ढूंढना पड़ेगा उस chaos में, और मेरे ख्याल से वो ऑर्डर ढूंढने का बेस्ट तरीका आपका पीवाईक्यू है, along with your accumulated knowledge. So if you are करेक्ट। able to balance it properly, और आपका एग्जाम डे में आप अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर पाए, तो आपका प्रीलिम्स निकालने के चांसेस इनफाइनाइटली टाइम्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो let's hold the session on that particular note, Kunal. बिल्कुल सर। Thank you so much for your time. Thank you so much for being here. It is always a pleasure to talk to you. लोगों को दिखेगा आज कि like what a humble topper looks like, and
I really, really, really wish you all the very best for all the things that are coming your way, and keep coming back, keep sharing your knowledge. Me बिल्कुल। personally requires it a lot, and then people require that a lot as well. थैंक यू अगेन सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को गिव बैक करने का, जो मुझे मेरे टॉपर से मिला है। एंड आई विश कि मैं भी उनके आगे के सक्सेस में एक छोटा सा भागीदार बन पाऊँ। No, definitely, definitely, it's because of people like you that the knowledge chain goes on growing. So thank you once again, Kunal. Thank you so much. थैंक So यू। this was Kunal Rastogi with us, and he was here to deliver this session. And we really thank him, wish him all the best for everything that is coming ahead. Thank you so much, everybody, for listening, for being a part of this session. And let's conclude it on that particular note. I'll see you in another lecture. This is Satyam Jain signing off. Till we meet again, Jai Hind, keep studying. Have a great day.